Okay, so in last lecture, already we have seen about the error, how to find out the error in the measurement of the product of two quantities when the error in the measurement of the two individual quantities is already given. Okay, so now in this lecture, let us try to find out the error in the measurement of division of two quantities. ठीक है, और इवन कल लास्ट में हमने जाते जाते एक पावर वाला फॉर्मूला भी किया था, अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि इफ z इज इक्वल टू x रेज टू n, then there is a relationship between this error in the z, relative error in the z is equal to n times of relative error in the x. ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था, करेक्ट है? यस, ओके, सो ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो इसको यूज करके कुछ फॉर्मूले जो है, या इसको यूज करके किस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं या एरर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, देयर इज an error of 3% in the radius of a circle. Find the error, percentage error in its area. Yes, how will you do that? There is a error of 3% in the measurement of the radius of a circle. तो सर्कल का जो रेडियस है उसके अंदर हमने 3% का एरर किया हुआ है। ठीक है, तो उसको यूज करके एरिया के अंदर का एरर कैसे निकालेंगे? देखो, हमको ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है? पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल। यस, so if we just use this here, then we can just get that this area is actually proportional to r square, करेक्ट है? तो ये एरिया जो है वो यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में है। पाई तो कांस्टेंट है, उसके अंदर कुछ एरर आने वाला नहीं है, पर जो भी एरर आएगा वो आर के अंदर आएगा और उसकी वजह से एरिया के अंदर आएगा। और इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, और यूजिंग दिस रूल वी कैन से दैट the relative error in the measurement of area will actually be 2 times of, okay, 2 times of the relative error in the measurement of this radius here. okay, तो रेडियस के अंदर जितना भी एरर आएगा उसका डबल एरर एरिया के अंदर आने वाला है। और सेम इज द केस विद द परसेंटेज एरर आल्सो, सो वी कैन जस्ट से दैट इज डेल्टा a upon a into 100. if you just multiply both sides by 100, then we can be able to get this delta a upon a into 100 is going to be equal to 2 times of delta r upon r into 100. तो दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे ये जो पूरा है, this whole chunk will actually be the percentage error in the area actually. okay, and this will actually be the percentage error in the radius, and hence we can just get that the percentage error in area is going to be double of the percentage error in the radius, where the percentage error in the radius is already given here, that is 3, correct है? So if we just use it here, then we can get this 2 times of 3, मतलब कितना हो गया वो 6%. This is actually going to be the percentage error in the area if we know the percentage error in the radius in this way. तो अगर रेडियस के अंदर 3% का एरर है तो एरिया के अंदर 6% का एरर आएगा, दैट्स ऑल। दिस कंप्लीट्स द सम। ये पूरा कंप्लीट ये सम हो गया। अच्छा, अगर एक दूसरा सम अगर अब यहाँ पे पूछेंगे कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर is measured with the error of 2.5%. Find the percentage error in its volume.
Can you tell me what should be its answer orally? कौन बताएगा? ये क्वेश्चन का आंसर ओरली बताओ जल्दी. देखो, radius of the sphere is measured with an error of 2.5%. Okay, 2.5% is the error in the measurement of radius of a sphere. Then we want to find out the error in the measurement of its volume, percentage error. तो हमको पता है ऑलरेडी कि volume of a sphere is has a special formula. What is the special formula for volume of the sphere? It is 4/3 pi r cube. करेक्ट है? ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए. करेक्ट है? Okay, so can't we see that this volume is actually directly proportional to r cube here? Check. अगर ये वॉल्यूम r cube के प्रोपोर्शन में है, क्योंकि देखो pi and 4/3 are going to be the constants. They are not to be measured. There is no error in the measurement of this 4/3 and pi. They are just constants. We know them. Okay, but only error is going to be there in this radius here. तो radius के अंदर ही error आने वाला है. तो उसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर कितना एरर आएगा ये निकालने के लिए हमको ये जानना होगा कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस क्यूब. अगर वो क्यूब पे डिपेंड करता है तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम विल एक्चुअली बी 3 टाइम्स ऑफ द relative error in the radius. That's all. And if we just multiply both sides by 100, then we can be able to get that this delta v upon v is going to be equal to, yes, delta v upon v becomes equal into 100. Okay, यहाँ पे into 100 आएगा. दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ अगेन डेल्टा r upon r into 100. That's it. So this actually becomes the percentage error in volume, and this is going to be the percentage error in radius. Okay, which is already given here. Okay, तो अगर ये रेडियस के परसेंटेज एरर के बदले अगर हमने 2.5 डाल दिया तो उसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा, जिससे ही हमको परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा? 3 टाइम्स 2.5. हाउ मच इट इज? इट इज एक्चुअली 7.5. ओके, तो 7.5%. This will be actually the error, percentage error in the measurement of the volume of the sphere. That's all. देखो कितना सिंपल है. क्या किया हमने? सिंपली जो भी एरर इस क्वांटिटी के अंदर आने वाला है उसको सिर्फ 3 गुना बढ़ा दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमको वॉल्यूम के अंदर का एरर मिल गया. That's it. So it is so simple. Yes, just take the screenshot of this also. And yes, if you have any doubt, just unmute yourself and just ask the doubt. समझे दोनों चीजें कैसे हमने किया? वहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो एरिया होता है वो एक्चुअली रेडियस के स्क्वायर के पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे क्यूब जो है वॉल्यूम का, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है. इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरफ स्क्वायर किया और इस तरफ क्यूब किया. Okay, let us see another example of the same. Yes, length of side of a square is measured as L is equal to 16 plus or minus 0.4 centimeter. Okay, yes, this is the length of the side. Find the area of the square. And error in it. Okay, that is to be found out here. That means we want to find out the error also, and at the same time we want to find out the square area of the square also. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको ढूंढ के निकालनी है. ठीक है, how will you do that? Yes, सबसे पहले हमको ये समझना है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द साइड,
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर मान लो ये स्क्वायर है, उसका लेंथ अगर l है तो हर एक लेंथ उसका सेम ही होगा, तो उसका एरिया अगर हमने a मान लिया तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू l स्क्वायर। ये तो तुमको पता ही होगा ऑलरेडी, है कि नहीं? तो इसको यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि द रिलेटिव एरर in the measurement of area will actually be 2 times of the relative error in the measurement of length here. ये हम समझ सकते हैं आराम से। okay, the relative error in the measurement of area is double of the relative error in the measurement of length. okay, ये हमको पता है, लेकिन अभी इसमें चेक करो कि डेल्टा एल कितना है। देखो ये एल जो है वो 16 प्लस और माइनस 0.4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स the length of the square, length of the side of the square is going to be 16 centimeter. okay, and the error in the length is going to be 0.4 centimeter here. correct है? तो हमको L भी मिल गया और डेल्टा L भी मिल गया। once we get both of this, we can just put them here and get the area delta A upon A to be simply equal to what? So 2 times of delta L is 0.4 and L is 16 here. correct है? And then we can just be able to find out this, that is delta A upon A is going to be, yes, ये 0.8 बन जाता है, तो 0.8 upon 16 which can also be written as 8 upon 160. correct है? So this is 8 upon 160 which can also be reduced by 2, so as to get this 8 ones are 8 twos are, and it becomes 1 upon 20 here, which can also be written as 0.05. correct है? If you reduce it into the decimals, then it will be actually 0.05. okay, so this 0.05 is going to be the relative error in the measurement of area. But if you want to find out the percentage error, we can get multiplied it by 5 and get it as 5%, no doubt. But if you want it as a error in the measurement of the area, तो उसके लिए हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? एरिया कितना होगा? देखो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो ठीक से कि a is equal to l square, so therefore we can just say that this a is equal to 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर मतलब कितना बनता है वो? तो we get this area as 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? so 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, this will be actually the area of that square. yes, and once we get this relative error, तो यहाँ पे डेल्टा a upon a तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, ये डेल्टा a upon a is given to be 0.05. okay, so if you want delta a only, then just transfer this area a in that side, so that we can get this 0.05 into a, where a is already 256 here. so if you just replace it by that, then we can get this delta a to be simply equal to 0.05 into 256. okay, so this 256 here, if you just multiply them together, then how much it becomes is 256 का 5 times कितना होता है? 1280. करेक्ट? बट 2 डिजिट्स पीछे लेके जाएंगे उसको पॉइंट को, तो वो 12.5 आ जाएगा। यस, 12.5 centimeter square. This is actually going to be the error in the measurement of area here. Yes, and if you want to find out the area, तो एरिया कितना होगा? देखो 256 तो हमको मिला हुआ है वो, और प्लस और माइनस एरर उसके अंदर कितना है? 12.5, and that is going to be in centimeter square. yes, so this is actually going to be the area and error in it. तो एरिया भी मिल गया, एरर भी मिल गया। That's it. okay, समझा ठीक से क्या क्या किया हमने? हमको सिंपली लेंथ दिया था, लेंथ भी दिया था और मतलब लेंथ ऑफ द साइड दिया था, और उसके अंदर का एरर भी दिया था। उससे हमने पहले एरिया निकाल के दिखाया, और एरिया निकालने के बाद फिर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यूज करके हमने एरिया के अंदर का रिलेटिव एरर ढूंढ के निकाला, जो 0.05 मिला। लेकिन हमको पता है रिलेटिव एरर इज ऑलवेज द एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एरिया, therefore area has to be multiplied in that side so as to get the error actually. तो एरर निकालने के लिए हमने एरिया को उस तरफ लेके जाए, तो एरिया का वैल्यू जो 256 है वो वहां पे डाल दिया, तो उससे हमको यहाँ पे फाइनली एक्चुअल एरर मिल गया। एरिया के अंदर का एक्चुअल एरर हमको मिल गया, जो कि 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, और वो फिर यहाँ पे एरिया के साथ हम लिख सकते हैं आराम से। सो द एरिया विल बी 256
but there will be a error of 12.56 centimeter square in that measurement of that area. That's all. So this is the area found out along with its error. Yes, just take the screenshot of this also. Okay, let us do one more question of the same type. Okay, देखो, just wait a minute. Okay, so we are going to take the example. Side of a cube is measured as 2.00 centimeter with an error of 0.05 centimeter. Okay, देखो, side of the cube is measured as 2.00 centimeter with a possible error of 0.05 centimeter. ये error भी दिया है और length भी दिया हुआ है. ठीक है, find the error, find its volume and error in it. Okay, find its volume मतलब वो क्यूब का वॉल्यूम हमको ढूंढ के निकालना है और उसके अंदर का एरर भी ढूंढ के निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इफ देर इज अ क्यूब लाइक दिस, ये सपोज एक क्यूब है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताओ.
what is the formula for volume of a cube? We know that it is V is equal to L cube, करेक्ट है? लेंथ का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए. यस, तो इसका मतलब अभी सबसे पहले हमको वॉल्यूम ढूंढ के निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इफ यू जस्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम हियर, देन वॉल्यूम V ऑफ दिस क्यूब विल एक्चुअली बी लेंथ का क्यूब. लेकिन लेंथ कितना है देखो, ये 2.00 है कि नहीं लेंथ उसका, तो इस 2.00 का क्यूब हमको करना पड़ेगा, जिससे हमको अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 2.00 का क्यूब कितना आता है? अभी 2.00 मतलब 2 ही हो गया ना, तो 2 का क्यूब कितना आता है? 8 आता है, ठीक है. बट वी शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट, एंड देयरफॉर वी कैन जस्ट हैव दिस एज 8.00 सेंटीमीटर क्यूब एज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, करेक्ट है? तो ये 8.00 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम बन गया. चलो ठीक है, वॉल्यूम तो मिल गया. अभी क्या करना है? हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम? तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन V, ओके, इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जबकि क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे रेस टू 3 है ना, तो उसकी वजह से वो रेस टू 3 क्या होगा, सामने आ जाएगा. तो इसलिए वो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L अपॉन L इस तरह से बन जाएगा, जिसमें अगर हमने ये वैल्यू डाल दिया तो डेल्टा L का वैल्यू कितना है, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.05. सी इट हियर, दिस इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर in the numerator, so we can get this 0.05, and that is to be divided by the length of this cube, which is 2.00 as it is. So this is 2.00 here, and now if we just multiply or divide this here, then we can be able to get this 0.15 divided by 2.00. Now we can just see that yes, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.075, करेक्ट है? यस, so 0.075 will actually be the error in the measurement of, relative error in the measurement of volume. But if you want to find out the volume exactly, error in the volume exactly, तो उसके लिए हमको इस V को वो साइड में लेके जाना पड़ेगा, उस तरफ, जिससे वो हमको मिलेगा डेल्टा V इज इक्वल टू 0.075 multiplied by volume V. Okay, so that we can just get this in the next step, that is delta V is equal to, so this is 0.075 into the value of volume, how much it is, 8.00. okay, so this is 8.00 here, correct? So if we just multiply this together, then this delta V, matlab error in the volume, can be found out here. So how much is this? 75 into 8 कितना होता है? 75 का देखो डबल होता है 150, और उसका 4 टाइम्स होता है 300, और 300 का भी डबल बोले तो वो हो गया 600. ओके, 600, बट डेसिमल पॉइंट हैज टू बी 3 डिजिट्स एट द लेफ्ट साइड, सो इट शुड बी 0.6 एक्चुअली. ओके, तो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, दिस शुड बी एक्चुअली द फाइनल वैल्यू ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम हियर. Once we get the error in the volume as well as the volume, we can just get to write this as volume of this cube will actually be equal to 8.00 centimeter cube, but with an error of 0.6, or you should write 0.60 centimeter cube. Okay, so this must be actually the final value of volume along with its error in this way. ओके, सो इस तरह से हम एरर निकाल सकते हैं आराम से, देखो ठीक से, ठीक है. और अगर परसेंटेज एरर पूछा तो कैसे करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर? सी, वॉल्यूम के अंदर का रिलेटिव एरर हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, 0.075 मिला हुआ है, राइट? इसको अगर हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? परसेंटेज एरर मिल जाएगा. सो वी कैन जस्ट से दैट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज एक्चुअली गोइंग टू बी this 0.075 multiplied by 100, which makes this decimal point to shift 2 digits at the right side, so that it becomes 7.5 simply. So it will be 7.5%. This will actually be the percentage error in the measurement of volume, which is 7.5% here. और अगर लेंथ के अंदर का परसेंटेज एरर निकालना है तो कितना आएगा? तो देखो लेंथ के अंदर का एक्चुअल रिलेटिव एरर कितना है, ये 0.05 अपॉन 2, मतलब वो 5/2, मतलब वो 0.2025 बन जाएगा. उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5% बन जाएगा, 2.5%. ओके,
तो 2.5% को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7.5 ही मिल जाएगा हमको. ओके, yes, just take the screenshot of this also. Okay, yes, let us see the next topic in this chapter, that is how to find out the relative error in the measurement of ratio if we know the relative error in the measurement of two individual quantities. Suppose we have z is equal to x upon y. Okay, z is equal to x upon y, ये हमारे पास है. और हमको अभी हमने x के अंदर जो है, x के अंदर डेल्टा x इतना एरर बना दिया, y के अंदर डेल्टा y इतना एरर बना दिया. ठीक है, और z के अंदर मान लेते हैं कि डेल्टा z इतना एरर बन गया उसकी वजह से. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस डेल्टा z, डेल्टा y and delta x? We want to find out, we want to investigate here. So if we just want to find out this delta z by knowing this delta x and delta y, तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि देखो x का जो वैल्यू है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में रहने वाला है. तो उसके लिए हमको पता है x माइनस डेल्टा x और x प्लस डेल्टा x, इन दो वैल्यूज के बीच में वो रहने वाला है. ठीक है, अभी y के बारे में भी हम यही बोल सकते हैं, y विल लाई बिटवीन y माइनस डेल्टा y एंड y प्लस डेल्टा y. करेक्ट है. एंड z फाइनली will also lie between the two values, that is z minus delta z and z plus delta z. करेक्ट है. ओके, तो ये तो हमको पता है ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी कई बार इससे पहले भी किया है, नो डाउट. चलो ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे ठीक से तो z का जो है मैक्सिमम वैल्यू z प्लस डेल्टा z है और उसका मिनिमम वैल्यू z माइनस डेल्टा z है. कैन यू टेल मी व्हेन द वैल्यू ऑफ z विल बी मैक्सिमम? अभी रेशियो है, डिवीजन है, तो रेशियो, दो क्वांटिटीज का रेशियो मैक्सिमम कब बनता है? यस, राकेश और पार्षद, कैन यू टेल मी व्हेन द रेशियो कैन बिकम मैक्सिमम? रेशियो मैक्सिमम बनने के लिए न्यूमरेटर को बढ़ना पड़ता है और डिनोमिनेटर को कम होना पड़ता है कि नहीं? तो जब न्यूमरेटर बड़ा से बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा से छोटा है तो उस केस में रेशियो मैक्सिमम बनता है. बराबर. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस डेल्टा z will be obtained only when we select the maximum value of x and divide it by the minimum value of y. Do you agree with this? अगर ये ठीक से समझा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी रॉन्ग. तो एक z का मैक्सिमम वैल्यू मिलने के लिए हमको x का मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा. ये x प्लस डेल्टा x हमने डाल दिया न्यूमरेटर के अंदर. ओके, और y का मिनिमम वैल्यू हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको y माइनस डेल्टा y हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखो हमने न्यूमरेटर के अंदर प्लस साइन सिलेक्ट किया और डिनोमिनेटर के अंदर माइनस साइन सिलेक्ट किया. उसका रीजन यही है कि न्यूमरेटर मस्ट बी मैक्सिमम and denominator must be minimum in order to get the ratio maximum. Okay, and in the same way when can we get the ratio minimum then? तो minimum ratio कभी मिलेगा? z minus delta z कभी मिलेगा? when the numerator will become minimum and denominator will become maximum. Do you agree with this again? सो x का जो है मतलब हमको मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा इधर न्यूमरेटर में, तो ये x माइनस डेल्टा x हमको मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? y प्लस डेल्टा y आएगा. ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर. ओके, अभी यहाँ पे हम इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इस z को वो साइड में शिफ्ट करना. ठीक है, सो जिससे हमको ये डेल्टा z जो है तो वो हमको मिल जाएगा इस तरह से, डेल्टा z इज इक्वल टू
x plus delta x upon y minus delta y minus z. But minus z, z is what? Z is already x upon y, correct? So we can just replace it by x upon y here also. So this is x upon y kept as it is. Okay, so let us take this z, delta z upon delta z as it is, which is actually going to be, okay, तो एक ये तो थोड़ा सा लॉन्ग कट पड़ेगा हमको, उसके बदले एक दूसरा शॉर्टकट भी है, बट चलो ठीक है, लेट अस ट्राई टू डू दिस बाय दिस मेथड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर में, देखो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, फिर यहाँ पे बनेगा x इंटू वाई माइनस डेल्टा वाई, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस डेल्टा वाई as it is. Okay, and then we can just say here this will be delta z kept as it is, which is actually going to be, अभी इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दो तो हमको क्या मिलेगा, देखो y into x becomes x into y plus here it is going to be y into delta x, right, minus here it is going to be x into y and here it will be plus x into delta y, correct है? So this is x into delta y and that is to be divided by this y square minus y into delta y. Okay, now see here this x into y and minus x into y will straight away get cancelled. Okay, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, yes, delta z can be written to be simply equal to y into delta x, okay, plus x into delta y upon y square minus y into delta y as it is. Okay, yes, now let us try to find out the relative error in the measurement of z here. ठीक है, तो z के अंदर का रिलेटिव एरर अगर हमको निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे डेल्टा z को z से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। अभी z से डिवाइड करना मतलब क्या कि z के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, और z मतलब कौन है, x अपॉन y है, देखो इधर, तो इस x अपॉन y का रेसिप्रोकल का क्या बनता है, y अपॉन x बनता है, और इससे इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो बनेगा y इंटू डेल्टा x प्लस x इंटू डेल्टा y, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय, इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा y इंटू y माइनस डेल्टा y. Okay, so here y actually just gets cancelled. Okay, and this delta y can actually be neglected here, and then we can just get in the next step, that is delta z upon z is equal to approximately, तो यहाँ पे हमको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, y इंटू डेल्टा x प्लस x इंटू डेल्टा y अपॉन, यहाँ पे हमको x इंटू y मिलेगा, ये डेल्टा y निग्लेक्टेड है तो इसलिए फिर x इंटू y हमको मिल जाएगा डिनोमिनेटर में. And now if we just separate out these terms, denominator for both of the terms in the numerator, then we can be able to get this delta z upon z here, which is going to be y into delta x upon x into y plus here it is going to be x into delta y upon x into y. So that in this first term here, this y just gets cancelled, and in the second term here, x will just get cancelled, and what we are left with is simply delta z upon z is equal to, here it is delta x upon x plus here it is going to be delta y upon y. That's all. This is going to be the relationship between the relative error in the measurement of the z if we know the relative errors in the measurement of x and y. So the relative error in the measurement of a ratio always happens to be the sum of the relative errors in the measurement of individual numerator as well as denominator. तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज है उनके अंदर जितने भी रिलेटिव एरर्स होंगे उनके एडिशन के बराबर का रिलेटिव एरर यहाँ पे हमको रेशियो के अंदर मिलता है, तो ये बात हमको यहाँ पे याद रखनी है.
दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है. सो दिस रिजल्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द सेम एज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. याद है, द प्रोडक्ट के अंदर भी हमको यही रिजल्ट मिला था, डिवीजन के अंदर भी वही मिल रहा है. तो याद रखने के लिए भी थोड़ा सा इजी है कि देखो हमने एडिशन के अंदर वही रिजल्ट देखा था जो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमको मिला था, और अभी डिवीजन के अंदर भी हमको वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमको प्रोडक्ट के अंदर मिला था, ठीक है नहीं. तो इसलिए डिवीजन और प्रोडक्ट दोनों के केस में एक ही रिजल्ट यूज करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में एक ही रिजल्ट यूज करना है. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट and let us do the same by another method which is somewhat simple method comparatively. Yes. Okay, so एक दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं. देखो कैसे, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है, ये जो स्टेप है हमारे पास है कि z plus delta z means the maximum value of z will be obtained only when the maximum value of x is to be divided by the minimum value of y. वो तो ठीक है, वो तो हमको करना ही है बिल्कुल. अभी इसमें होता क्या है, देखो इसमें से अगर हम z कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो हमको मिलेगा सिंपली 1 प्लस डेल्टा z बाय z. ओके, सिमिलरली इफ वी जस्ट टेक दिस x कॉमन फ्रॉम दिस फर्स्ट ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर ब्रैकेट, सो व्हाट वी गेट इज x इनटू ब्रैकेट 1 प्लस delta x upon x. Okay, and from the denominator also we can just take y common here. Just wait, z कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z मिल गया, और इक्वल टू वो साइड में वही हमको करना है. न्यूमरेटर में से भी हमने x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से y कॉमन लेंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस डेल्टा y अपॉन y as it is. So that here if we just replace this z or this x upon y by z as we can see it here, then we can just cancel out this z and x upon y here. Do you agree with this? Actually z is equal to the ratio of x and y. So in the RHS we can see the ratio of x upon y, and here we can just see the z alone. So z और x upon y सेम ही है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी, तो हमको मिलेगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z is actually going to be equal to, here it will be 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x into ये जो डिनोमिनेटर में है तो उसका पावर एक्चुअली यहाँ पे 1 है बराबर. वो अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर -1 हो जाएगा बराबर, -1 हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा 1 माइनस डेल्टा y अपॉन y the whole raised to -1. Okay, and then here we can just use a binomial approximation. एक आगे चल के आपको मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला आने वाला है कि 1 plus x the whole raised to n is approximately equal to 1 plus nx. Okay, 1 plus nx when x is going to be very very small than 1. अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो उस केस में होता क्या है, याद रखो ठीक से कि 1 plus x raised to n happens to be same as 1 plus nx, and this formula can be used here in this third step, third term here. तो इस थर्ड वाले टर्म के अंदर हम वो यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो 1 plus delta z upon z is kept as it is equal to, here 1 plus delta x upon x is also just kept as it is, but in this third term here this 1 minus delta y upon y raised to -1, here this -1 will just jump in the front, in the middle, and it will make this minus sign plus here, and because of that we can just say that this will be 1 plus delta y upon y as a final. And now if we just open this bracket here, then we can just get this 1 into 1 as 1 plus this 1 into delta x into upon x into 1 becomes delta x upon x only, plus this ये हमने ओपन किया
और इसके साथ अगर ओपन करेंगे तो दिस 1 into delta y upon y will be simply delta y upon y again, and last will be this second term into second term. Okay, second terms अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा delta x upon x into delta y upon y. That's all. And now we can just consider this to be very small and hence we can neglect it. इसको अगर हम neglect कर देंगे तो बाकी जो 3 टर्म्स बचते हैं तो उनको अगर इसके साथ इक्वेट करते हैं तो हमको मिलेगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस. ओके, उसमें से भी क्या है ना कि ये 1 जो है वो दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं आराम से. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द सेम इन बोथ साइड्स, सो वी कैन जस्ट गेट इट एज डेल्टा z अपॉन z इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, which is required result. We can just see here. Okay, so this is again another method to find out the same result, but just it's okay, we can just do it by previous method also, no problem. After all, method जो है, method is not important. What is important is the final formula here. ये जो final result है वो ज्यादा important है, तो इसलिए वही हमको आगे चल के sums के अंदर use करना है. So just take the screenshot of this also. Okay, finish with this. Yes, so the sums based on this division rule will cover tomorrow. Okay, तो next lecture में हम देखेंगे कि किस तरह से इन डिवीजन के ऊपर सम्स किए जाते हैं. मतलब जब दो रेशियो के अंदर के दोनों क्वांटिटीज के अंदर का एरर अगर निकाल दिया हुआ है तो उस रेशियो के अंदर का एरर कैसे निकालना होता है. तो उसके लिए वही हमको रूल यूज करना है कि रिलेटिव एरर्स गेट एडेड टुगेदर इन द रेशियो आल्सो. तो यही हमको बात यूज करनी है नेक्स्ट इसमें. और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन भी यूज करना है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंबाइन होता है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों सब होते हैं, या पावर्स भी होते हैं. तो तभी हमको क्या करना है वो भी हम देखेंगे कल के लेक्चर में. ठीक है, यस, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग or have some doubt, you can just unmute yourself and ask here. Yes, Parshad, Rakesh. Okay, Rakesh. Okay, ठीक है, चलेगा. So let us stop here. Thank you all of you. Bye bye.